Hello students, how are you? I hope you all are fine. In this video we are going to continue the remaining part of the chapter number 9. The name of the chapter is Land from standard 5th, subject Environment. In the previous video of this chapter we have read the story of Magan Bhai and his granddaughter Jill. Magan Bhai is a potter by profession and he prepares pots and different vessels from soil. From that story we have learned that the things which are made up of soil can get mixed up with the soil. For example, human excreta, animal excreta, vegetables and fruit peels, different parts of the plant and the other things can get easily mixed up with the soil. The time duration for each is different. And after that we have seen 3 activities in which we have sieved the lumps of the soil from different sizes of sieve, and we have learned about the components of soil, different components of soil that are sand, stones, silt, dust powder or filtered powder that we have get from the after filtering the soil from the cotton cloths. Okay. So all of you open page number 74. Now we are continuing our chapter. All of you open page number 74 in your environment textbook. So let's start. Activity 4. What do we need? What do we need here to perform our activity? You have to perform this activity at your home. Okay? It is very interesting activity. What do we need? We need transparent plastic bag, transparent glass, spade. You know what is spade? Spade is an instrument which we use to dig the soil. Lump of soil and thread. What transparent plastic bag. Now transparent material किसे बोलते हैं वो आपको पता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम उसे बोलते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं आर पार जो हमें दिखता है, जस्ट लाइक अ ग्लास. कोई ग्लास होता है उसके आप दोनों साइड देख सकते हो ना, इधर खड़े हो तो आपको दिखेगा कि पीछे क्या है. वो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है इसीलिए. तो वैसे ही आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए, अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, स्पेड, लंप ऑफ सॉइल एंड थ्रेड. What will you do? अब हमें क्या करना है? What will you have to do? Bring 3-4 lumps of soil from the nearby farm from 1 feet depth by digging with spade. Now what you have to do? You have to bring 3-4 lumps of the soil from your nearby garden or farm. Keep 1-2 lumps of soil in the transparent plastic bag and tie its mouth with thread. Now you have to put 2 or 3 lumps of soil into a plastic bag, okay, and tie its mouth with a thread, or you can use rubber band also. Now keep this plastic bag in sunlight for some time. For some time you have to keep that plastic bag in sunlight. After some time bring it to the class and observe. After some time you have to observe that polythene. What to observe and what did you observe? What to observe? The inner walls of the plastic bag. आपको कहाँ पे ऑब्जर्व करना है? प्लास्टिक बैग के जो इनर वॉल्स है उस पे ऑब्जर्व करना है. What did you observe? What will you observe? You will observe that there are tiny water drops are present in the inner walls of the plastic bag. Why? What is the reason behind it? ये पानी, ये water droplets कहाँ से आए? तो जो सैंड हमने जो सॉइल के लम्प्स हमने उसमें डाले थे उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट था, और जब हमने उसे सनलाइट में व्हेन वी हैव kept this polythene in sunlight, जो वाटर था वो इवोपरेट हुआ. डू यू नो व्हाट इज इवोपरेशन? Evaporation is the process
from which by which the water is converted into water vapor. जिसके जो पानी है वो वाटर वेपर बनता है, उस प्रोसेस को हम वाटर इवोपरेशन कहते हैं। तो जो ये सॉइल लैंप्स में जो वाटर प्रेजेंट था वो इवोपरेट हुआ। हमने जो इस पॉलीथीन का माउथ टाइट किया हुआ था उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो ऊपर बाहर नहीं निकल पाई, और उसकी वजह से जो ये इसकी इनर वॉल्स है उसमें जमा हो गई सारी वाटर ड्रॉप्स, वाटर वेपर, और वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप हमें दिख रही है। ओके, नाउ वन मोर एक्टिविटी इज देयर, एक्टिविटी नंबर 5. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, fill it with water. Now you have to take a transparent glass and fill it with water. Add a lump of soil to the glass. Observe what happens. Now you have to put one lump of soil in that glass. What happens? तो जैसे ही आप इसके अंदर एक लंप ऑफ सॉइल डालोगे तो क्या होगा? आप वेयर टू ऑब्जर्व, आपको कहाँ पे ऑब्जर्व करना है? इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन एंड नियर द सॉइल. यू हैव टू ऑब्जर्व नियर दिस सॉइल. ओके, you will observe that some bubbles are getting up from this soil lamp. Why? ऐसा क्यों हो रहा है? तो in between the soil particles उसमें एयर प्रेजेंट है. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर है, उनके बीच में जो जगह है वहाँ पे एयर है. एयर सब जगह होती है, आपको पता है. तो वो जो उनके बीच में जो स्पेस है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वो एयर है. जब हम उसे पानी में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, तो जो वाटर एयर है वो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स ऊपर उठ रहे हैं. ओके, रिमेंबर एंड राइट विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिगिंग द सॉइल. हम जब सॉइल डिग करते हैं तो हमें कौन कौन से चीज़ें मिलती है? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी गेट? वी गेट सिल्ट, सैंड, स्टोन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स the organism which cannot be seen with your naked eyes. Human excreta, dungs, different parts of plants and other things. Now all of you open page number 75. Here one question is there. Which organisms are found in the soil? आपको सॉइल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, earthworms and other insects are also present in the soil. Next question, which different components of soil can be seen separately? हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो सॉइल में अलग ही दिख जाते हैं? तो स्टोन्स, सिल्ट, सैंड, फाइन पाउडर ऑफ सॉइल can be seen separately. Now one fact is the leaves, feather, parts of living organism are seen. हमें क्या दिखता है सॉइल में? तो लीव्स है, फेदर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं. These are living components. हम इन्हें क्या बोलेंगे? What we will call them? Living organism और biotic components. Sand, stones, clay, etc. are non-living components or abiotic components. You can call them also abiotic components. Okay? जो भी लिविंग थिंग्स के रिलेटेड जो पार्ट्स है लिविंग थिंग्स के, वो अगर आपको सॉइल में मिलते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स. और लाइक सैंड, स्टोन्स, metals, we will call them abiotic components or non-living components. Okay, right? Here one table is given, components of soil.
So one table is given here and it is divided into two parts. इसके दो parts किए हुए हैं. In one column you have to write biotic components and in other you have to write abiotic components. तो लीव्स एंड फेदर्स हमने अभी पढ़ा कि लीव्स एंड फेदर्स जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स की डेथ हो जाती है उनके जो पार्ट्स थोड़े बहुत बच जाते हैं वो डंग्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय योर नेक्ड आइज, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं. हम उन्हें कोई भी चीज़ को अगर माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो वो हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे, जैसे बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म एंड अदर इंसेक्ट्स. नाउ अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से मिलते हैं हमें सैंड में? तो है स्टोन है, सैंड है, सिल्ट, डस्ट पाउडर, मेटल्स एक्सेट्रा. ओके, इट इज ट्रू. मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, petroleum like diesel, petrol, kerosene और gas etc. are obtained from soil. जो मार्बल है, कोल है, जिप्सम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से. इज एनी सच थिंग्स ऑब्टेन्ड नियर बाय यू? क्या आपके एरिया में कोई ऐसी थिंग है जो मिलती है? ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं. कैसे? जब हम इनको बहुत ही गहरा सॉइल की जब खुदाई की जाती है, जब ज़मीन को बहुत गहरा खोदते हैं तो उसके नीचे से हमें ये सब चीज़ें मिलती है. मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल. सॉइल से हमें मेटल्स भी मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, कॉपर है एक्सेट्रा, वो भी हमें सॉइल में से मिलते हैं. वेयर आर दे ऑब्टेन्ड? ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, कैसे मिलते हैं? तो ये कहाँ पे ऑब्टेन्ड होते हैं? माइंस से. गोल्ड माइंस और डायमंड माइंस जो होते हैं ना, उसमें इनको निकाला जाता है. दैट्स इट स्टूडेंट्स. चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. तो हमने पहले तो पढ़ा कि जो हमारे फर्स्ट पार्ट का वीडियो था उसमें एक स्टोरी थी मगन भाई और उसकी ग्रैंडडॉटर जिल के बारे में, और उस स्टोरी से हमें पता चला कि जो चीज़ें द थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ सॉइल कैन गेट मिक्सड अप विद द सॉइल. जो चीज़ें मिट्टी से बनी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, और दूसरी चीज़ें भी है जो मिट्टी में मिल सकती है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट पील्स है, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स है, ये डंग्स है एक्सेट्रा. और हमने फर्स्ट पार्ट में 3 एक्सरसाइज की थी, 3 एक्टिविटी की थी कि हमने लंप ऑफ सॉइल को डिफरेंट साइजेस ऑफ सीव से सीव किया था, छाना था, और हमें हर एक एक्टिविटी में अलग अलग कंपोनेंट मिला था. फर्स्ट एक्टिविटी में हमें स्टोन्स मिले थे, सेकेंड एक्टिविटी में भी हमें सैंड मिली थी, और थर्ड एक्टिविटी में जब हमने जो सेकेंड एक्टिविटी से जो हमारा सीव्ड पार्ट था उसे हमने कॉटन क्लॉथ से सीव किया तो हमें क्या मिला? हमें सिल्ट मिली, और जो फिल्टर्ड पार्ट था वो डस्ट पार्टिकल या फिर स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ सिल्ट थी. ओके, उसमें से हमने ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी देखी कि जो सॉइल में सैंड का पार्ट ज़्यादा होता है उसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं, जिसमें क्ले का पार्ट ज़्यादा होता है उसे क्लेई सॉइल कहते हैं, और जिस पार्ट में सिल्ट का पार्ट ज़्यादा होता है उसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं. फिर हमने आज की क्लास शुरू की जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज की, एक्टिविटी 4 एंड 5. इन एक्टिविटी 4 हमने क्या किया था कि हमने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में कुछ लम्प्स ऑफ सॉइल डाले थे और उसे सनलाइट में रखा, और फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया? आफ्टर सम टाइम वी हैव ऑब्जर्व दैट द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग, जो इनर वॉल थी प्लास्टिक बैग की, उसमें क्या हो गए थे? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए थे. वो क्यों आए थे? वो इसीलिए आए थे कि जो सॉइल लम्प्स है उसके अंदर पानी प्रेजेंट था इन द फॉर्म ऑफ
मॉइस्चर, और वो इवोपरेशन के वजह से सनलाइट की जो हीट थी उसकी वजह से वो इवोपरेट होना शुरू हो गया। और हमने जो पॉलीथीन का मुंह था, जो उसका माउथ था, वो हमने थ्रेड से बांध के रखा था, तो उसे ऊपर जाने की, बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, इसलिए वो उसके इनर वॉल्स में जमा हो गया। और एक्टिविटी फिफ्थ में हमने क्या देखा कि हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया और उसके अंदर हमने थोड़ा सा लंप ऑफ सॉइल डाला, और डालते ही क्या हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो सॉइल लैंप्स थे उसके अंदर से छोटे छोटे बबल्स निकलने शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी, वहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, और जैसे ही हमने पानी में उसे डाला तो जो पानी था उसने एयर की जगह ले ली और एयर बाहर निकलने लगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। सो वहाँ से हमें सॉइल के दो प्रॉपर्टीज़ पता चली, दैट सॉइल कंज्यूम्स वाटर, सॉइल पानी खींचती है, और इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर वो उसमें प्रेजेंट होता है, और सॉइल एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर एयर होती है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने आज पढ़ी। और वी हैव लर्न टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग थिंग्स के पार्ट से, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होते हैं, जो जैसे कि लीव्स है, फेदर्स है, काउ डंग्स है, एक्सेट्रा। और अबायोटिक कंपोनेंट्स वो है जो नॉन लिविंग थिंग्स से निकले हुए होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं, जैसे सैंड है, स्टोन्स है, मड है, सिल्ट है, एक्सेट्रा। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स को हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।